Hello students, my name is Nitish Chandra and I am lecturer in James Polytechnic College in Science and Humanity Department. I am teaching you Applied Mathematics which have subject code 1615301 and this is Unit 1. You are learning different integration part 1. This is class number 1 of different integration. Okay, and I am teaching you lecture number 19. So there, what is first we will discuss about the definition. Definition of different integrals. Okay. Net integrals. Different integrals. Definition. What is the definition? Definition is if f be a function, if f be a function of x and g be the another function of x, of x such that fx is defined in the closed interval, interval a comma b. Okay, then g dash x equal to fx for all domain of all x is the domain of f. For all x is the domain of f. Then integration of a comma b fx dx is called different integrals. Okay, over closed interval a comma b. This is closed interval. Okay, where a and b are limits of integration ओके, ठीक है. तो वेयर ए क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर क्या है? इंफीरियर लिमिट और लोअर लिमिट. इंफीरियर लिमिट और लोअर लिमिट. while b is superior limit or upper limit. Okay,
So we can write it as a integration of a b comma f integration of dx. So it will be as gx. Okay, answer will be gx and the solution will be like this, b comma a. Okay, that means gb minus ga. Okay, so this will be the your answer. Okay, this is the final solution of. Okay, so this is the basic concept. Okay, in this we can see as correlation 1. We will see correlation 1. In correlation 1, it is if integration a b fx dx equal to 0, then the equation fx equal to 0 has at least one root open, is open interval AB, provided f is a continuous function in open interval. इसका मतलब हो गया, अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट एक जो रूट होगा वो ओपन इंटरवल में होगा. ओके, ठीक है. अब कोरिलेशन 2 क्या बताता है? कोरिलेशन 2 ये बताता है हमें, इफ the function fx is not defined at x equal to a and x equal to b, but it is defined in open interval a comma b, then f x dx exist and integration of a b fx dx can be evaluated. ओके, सो अगर ये x डिफाइंड नॉट डिफाइंड एट, इफ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a and x इक्वल टू b, बट इट इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए बी, देन तो क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ एक्स डी एक्स है वो एग्जिस्ट करेगा और उसको निकाला जा सकता है. ठीक है. अब जो वी विल सी नाउ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, ज्योमेट्रिकल
इंटीग्रल्स। हाउ, कैसे? तो देखिए यहां पर मैंने स्टेटमेंट बताया था, द डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ द integrals of integration a b fx dx is numerically equal to the area of curved linear trapezoid। ट्रेपेजॉइड मतलब क्या होता है? समलंब, बाउंडेड ऑफ by the given curve and by the straight line or ordinates x equal to a and x equal to b and x axis। ओके, तो ये हमारा क्या है? अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, सपोज दैट देयर इज वन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें कोई भी कर्व है ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है गया? एफ एक्स, ठीक है। तो सपोज दैट हमारा क्या x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसके बीच में ही ये लाई करना चाहिए, इसके बीच में ही ये लाई करना चाहिए। इसके बीच में ही ये लाई करना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में ही ये लाई करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये इधर उधर भाग रहा है, लाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पर x है और यहाँ भी है, तो ये बॉन्डेड एरिया हो गया हमारा, ठीक है। दिस इज द बॉन्डेड एरिया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? बॉन्डेड एरिया। तो यहाँ लिमिट डिफाइंड है हमारा, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक जाएगा, बस ये 0 है, ठीक है। तो ये मूव कैसे करेगा? ये ऐसे, यानी कि हम एक छोटा सा स्ट्रिप अगर काट के लेते हैं,
अगर हम छोटा सा स्ट्रिप काट के ऐसे करके लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो हम एक छोटा सा स्ट्रिप ऐसे काटते हैं, मान लो हम एक छोटा सा इस तरह से स्ट्रिप काटते हैं, ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिए, ठीक है, और ये एक्स डी एक्स मान लिए, ठीक है, ये इसको ये एरिया तो मुझे पता है ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में हो गया, ठीक है, और अगर इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, यहां से यहां तक का हमको क्या मिल जाएगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये बाउंडेड एरिया में भी काम आते हैं इस तरह के। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स। ओके, तो हम लोग इसको देख लेंगे, थोड़ा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या, जैसे इफ फर्स्ट if fx is continuous at x equal to a and x equal to b, then लिमिट यहां लगा रहे हैं, आप लोग लिमिट पढ़ चुके हैं, x टेंड्स टू a प्लस, ओके, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ओके, एंड एफ एक्स इक्वल टू बी, देन g of x dx equal to एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये वाला। ओके, सो इफ ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो हम देख लेंगे और भी प्रॉपर्टीज। तो कभी डिस्कंटिन्यूअस होता है, कुछ ये होता है, ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं एक्चुअल में इस पर, थ्योरी पर, मीन्स स्टेटमेंट पर। ओके, तो देखते हैं फंडामेंटल थ्योरीज और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देख लिए, अब प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। ओके, वी विल सी सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। गर्ल्स, ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, द वैल्यू ऑफ ए डिफिनिट इंटीग्रल depends only on या ये सब आप लोग अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, ऑन लिमिट्स एंड
not on nature of variable of integration. Okay, that is integration of a b fx dx equal to integration of a b f y dy. ओके, ये हो गया। यानी कि हम लोग का जो डिपेंड करता है डिफरेंट इंटीग्रल, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? लिमिट्स पर डिपेंड करता है। ओके, प्रॉपर्टीज पर नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड हमारा हो जाएगा इफ द लिमिट्स ऑफ डिफरेंट बी इंटरचेबल, if the limits of integrals be interchangeable interchange together, that is lower limit a to upper limit b, limit of b, and vice versa, then the value of integral remains unchanged, but sign is changed, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए बी है एफ एक्स डी एक्स, तो अगर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी एक लिख सकते हैं, लेकिन साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, डी एक्स। ओके, सो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ वी विल सी थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वन इज दिस। थर्ड प्रॉपर्टी है if function f(x) is continuous in closed interval, if the function is function f(x) is continuous in closed interval a x b
and differential in open interval a x b and f dash c equal to 0 such that a is less than c is less than b, then ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ए और बी के बीच में है, बट मैं बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डी एक्स इक्वल टू, तो ये क्या होगा, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस ये क्या हो गया, सी टू बी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, इसका मतलब ये हुआ, सपोज दैट अगर हमारा लिमिट ए जो हमारा सपोज दैट ये -1 से 1 है एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स। अगर ग्राफ हमारा इस तरह से बन रहा है, ठीक है, तो एक्स और वाई, तो क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी ये क्या है, निगेटिव, -1 से 0 और ये 0 से 1 में है सपोज दैट, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हो जा रही है। तो क्या होता है कि हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है साइन चेंज करने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर सकते हैं ऐसा कि -1 से 0 एक फंक्शन प्रूव हो गया एफ एक्स डी एक्स, और 0 से 1 एक फंक्शन प्रूव ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, और इसको हम लोग बहुत में ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो बहुत में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन रहता है तो हम लोग को इसी तरह करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको और भी हम लोग कितने रूप से लिख सकते हैं, देखिए, दिस रूल इज अप्लाइड फॉर मॉडुलस फंक्शन सी, ठीक है। जहां पर भी मॉडुलस फंक्शन रहेगा, जैसे मॉड एक्स, ये क्या हो गया, इसका क्या था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ओके। जहां पर भी मॉड का रहेगा तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सी, ओके। दैट इज एब्सोल्यूट फंक्शन। Okay, this rule can be generalized also, like a rule can be generalized also, like इसको हम लोग जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स। जैसे इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किए, हम 2 पार्ट में नहीं डाल के इन्फिनाइट फॉर्म में डिवाइड करेंगे, ए c1 एफ एक्स डी एक्स प्लस c1 c2 एफ एक्स डी एक्स प्लस, इसको बढ़ाते जाओ, प्लस इंटीग्रेशन cn, और लास्ट में क्या था, एफ एक्स। बस लिमिट हमारा अपर लिमिट जो था उसको लिख देंगे। तो हमारे ये क्या हो गया, जनरलाइज फॉर्म हो गया, वेयर ये जरूर होना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए, बीच में C1 C2 फिर आगे बढ़ते जाओ Cn, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जनरल फॉर्म हम देख लिए, जनरल फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट बी टू ignoring, okay, don't ignore this thing,
जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ये सब सारे यूज होते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच अबाउट फोर्थ प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है? इफ लोअर लिमिट बी जीरो एंड अपर लिमिट मे बी एनीथिंग देन डिफिनिट इंटीग्रल एक्ट्स अकॉर्डिंग एज द नेचर ऑफ इंटीग्रेंड इन द व्यू ऑफ इवन फंक्शन। यहां इवन फंक्शन आ गया और ऑड फंक्शन आ गया। ठीक है, अगर इवन रहेगा इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है स्टेटमेंट इसका? इफ लोअर लिमिट इज बी जीरो जीरो एंड अपर लिमिट may be anything, then definite integral acts according as the nature of integrand in the view of even function and odd function। ठीक है, ओके। सो हम लोग देखते हैं इवन और ऑड में क्या होता है। फॉर, इसीलिए ए फॉर इवन फंक्शन, फॉर इवन फंक्शन क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए, तो बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 ऑफ, ये जुड़ जाएगा 0 से ए, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, हमारा हो गया। और फिर ऑड के लिए क्या हो जाएगा? देखो ऑड के लिए फॉर ऑड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0, कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा दोनों रूल है। ठीक है, तो अब ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन क्या है और इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स, ये और इवन फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया और ये हमारा इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें, नोट, ये हमारा क्या हो गया? नोट्स हो गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं आप लोग को।
आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है, इसीलिए आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, ये दोनों। अब मैं एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या? देखिए, एक और थ्योरम बताने जा रहा हूं। ये सब थ्योरम थ्योरम बोल सकते हैं, ओके। दिस आर द थ्योरम्स। फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ, if lower limit is 0 and upper limit be anything, thus if lower limit is 0 and upper limit be anything, thus upper limit minus variables, thus function become upper limit minus variable। कैसे? देखो, 0 से a fx dx है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये ऐसे बना सकते हैं, 0 a f a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, ओके। सो डोंट बी टू मच एंग्जाइटी, मीन्स कि ये कैसे हो गया, ओके। नाउ ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम लोग जो भी प्रॉपर्टी रहेगा उसको हम लोग यूज करेंगे और आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है एक देख लेते हैं हम लोग। एक लास्ट प्रॉपर्टीज देखकर फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ द फंक्शन fx is periodic, that is periodic माने समझ रहे हो, बार बार वही टर्म रिपीट हो रहा है, a प्लस टी, ठीक है, इक्वल टू fx, वेयर, जैसे पीरियोडिक टर्म कहाँ यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री में, वेयर t इज नॉट इक्वल टू 0 एंड t is periods like p pi 2 pi like, ठीक है। तो देन तो क्या बन जाएगा फंक्शन, 0 से 2a है तो फंक्शन fx विल बिकम एज इंटीग्रेशन a fx dx प्लस 0 से a fx 2a माइनस एक्स dx, ओके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, ओके। सो आप लोग को इसको याद कर लेना है। सो कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटीग्रेशंस, ओके, रिलेटेड टू डिफरेंट इंटीग्रल्स। तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। इजी है, बहुत इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है, इफ इंटीग्रेशन इज 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो इसको जो कि लिमिट इसका क्या है, 0 से π/2, ओके। लिमिट वैरीज फ्रॉम 0 to π/2, इसलिए
इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आई इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस, यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे, 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करो। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, इसको जितना इजी वे में ट्रांसफॉर्म कीजिएगा उतना अच्छा है। 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया और ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, आई, फिर आई इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x बाई 2 और x बाई 2 का 1/2, 1/2। ठीक है, और लिमिट कहाँ से वेरी करेगा, 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 tan x बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। हमेशा लोअर लिमिट पहले नीचे होता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के लिए tan, यहां पर पाई बाई 2 अपॉन 2, ये समझ रहे हो, फिर माइनस tan 0/2 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, इसलिए आई इक्वल टू 1/4 tan पाई बाई 4 माइनस tan 0, आई इक्वल टू 1/4 1 माइनस 0। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए आई विल बिकम एज 1/4। सॉरी, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, देखिए 1/4 नहीं होगा, ये 1/4 नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 1 बच गया, ये 1 बच गया। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो आंसर विल बी आई इक्वल टू 1, आई इज 1। ठीक है, आई इज 1, ये हमारा। तो यहां पर डिफरेंट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में क्या दे, इनडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल में क्या अंतर है, इनडिफिनिट इंटीग्रल में हमारी वैल्यूज नहीं आती, वैल्यूज के टर्म नहीं आता, वो हमारा कोई टर्म रहता है, साइन एक्स कॉस एक्स, डिफाइंड नहीं होता है। बट यहां पर वैल्यूज डिफाइंड होती है, क्यों, क्योंकि वो एक बाउंडेड एरिया, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर हम किसी चीज का मान दे देंगे या किसी चीज की वैल्यू दे देंगे तो उसकी एक लिमिट हो जाती है, तो वही लिमिट के अंदर ही वो लाई करता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आई इक्वल टू, ये अच्छा क्वेश्चन है, 0 टू a इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो हमने ये पढ़ा है कि अगर इस टाइप का फॉर्म रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, देन dx विल बिकम एज a cos थीटा डी थीटा। ठीक है, जब तो हमने लिमिट, अगर लिमिट देखते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, सॉरी, when x equal to 0, then when x equal to 0, then
थीटा ऑल्सो, साइन थीटा विल बिकम 0, ठीक है। इसीलिए थीटा विल ऑल्सो बिकम 0 if x equal to a, then sin theta will become 1। कैसे? a by a करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू, इसको साइन के फॉर्म में लाओगे तो साइन पाई बाई 2, ठीक है। इसीलिए थीटा विल बिकम पाई बाई 2 और 90 डिग्री, ठीक है। ये समझ गया, व्हेन x इक्वल टू a, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 0 देन, ठीक है। तो हमने लिमिट चेंज कर दिया, यहां क्या किया, लिमिट को चेंज कर दिया। पहले x के फॉर्म में था लेकिन हमारा फंक्शन किस में बन रहा है, थीटा के फॉर्म में। तो हम लोगों ने यहां पर लिमिट को चेंज कर दिया, चेंजिंग ऑफ लिमिट बिकॉज वी आर चेंजिंग द फंक्शंस, बिकॉज वी आर चेंजिंग फंक्शन फ्रॉम x टू थीटा। तो अगर ये चेंज होगा तो हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट को हमने चेंज कर दिया। तो अब इंटीग्रेशन क्या बन गया, तो सो नाउ न्यू इंटीग्रेशन विल बिकम एज i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5। अब पहले 0 to a लिमिट जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब हम x के जगह पर हम क्या करेंगे, a स्क्वायर पुट करेंगे, और x के जगह पर a की जगह a पुट कर दिए, x के जगह हमने a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, ठीक है। और d थीटा की जगह क्या पुट कर दिए, a cos थीटा, डी थीटा, ओके। तो न्यू फंक्शन क्या बन गया, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, इधर से ए निकल गया, एक कॉमन लेंगे तो, ठीक है। तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब क्या बच गया, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो ए, इसको बता देता हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, ओके। एक ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है। तो क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो आई इक्वल टू क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, तो इधर ए बच गया और यहाँ क्या बच गया, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या है, ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इसका कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रिगो लगाना है। ट्रिगो के लगाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यूज फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर वही करेंगे, आई इक्वल, क्योंकि हमको स्क्वायर को फॉर्म को रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। जितना हमारा स्क्वायरिंग टर्म या पावर टर्म हटेगा वो हमारा उतना इजी हो जाता है इंटीग्रेशन, ओके। तो फिर हम आई इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेशन बहुत इजी है, कैसे, तो आई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2, डी थीटा, ठीक है, 1 बाई 2 बाहर निकल गया, प्लस
0 से पाई बाई 2। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो आई विल बिकम एज आई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 थीटा 0 to पाई बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 to पाई बाई 2। ठीक है, तो आगे हमारा फंक्शन क्या बन जाता है, अगर हम लोग लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट पुट कीजिए अब, तो क्या ए स्क्वायर बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, अलग अलग करेंगे तो इजी वे में होगा, अगर हच पच हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए ध्यान से करना है। ठीक है, साइन थीटा की जगह 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2, अब 2 को बाहर निकाल देंगे सिंपल, तो यहाँ 4 हो जाएगा माइनस 0 पुट करो, साइन 2 इंटू 0। ठीक है, तो क्या बन गया अब फाइनल आंसर, ए स्क्वायर को कॉमन कर दो अपॉन पाई बाई 2 बच गया प्लस 1 बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो इंटू 0, तो क्या आंसर क्या हो गया, आई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू में आ गई, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो समझ गया आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो फॉर टुडे दिस इज टुडे क्लास इज ओवर। इफ यू हैव एनी डाउट आई विल डिस्कस, you can give me the questions through WhatsApp or on my mail. Okay, so thank you for today.